big bet a year later. Correct. So we are now already 97, or I have one slide to share. I will start with that one. Okay. Yeah, please. Yeah. Okay. So today I am going to share only one slide. That is the maximum danger in maximum pleasure. ये मैंने कल भी ये मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंजर और मैक्सिमम प्लेजर का क्या कॉन्सेप्ट है. तो उसी एक स्लाइड पे टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज दिस मैक्सिमम डेंजर इज मैक्सिमम प्लेजर. I have issued a statutory warning, caution ahead, extreme danger ahead, extreme stress ahead, extreme fear ahead, extreme pain ahead, and a disclaimer. These were the all the जो स्लोगन्स या जो टिप्स मैंने या जो भी मैंने जो कैची वर्ड डाले थे वो मैंने कल वाले पोस्ट में डाले थे. उसका बेसिक फंडा क्या था, why I had to put this message, that I will show you. Now one of our member, he has sold 20 puts of 2200 Reliance in rupees 117, and this was really bothering me. Why he has sold 20 put, but he has sold this 220 put. Now by any chance, if the Reliance falls to 1800, you know his potential loss will be 14.2 lakhs. Although he is telling me that I will take the delivery, but this delivery is going to be extremely painful because he has to take the delivery at the rate of 2093. 2200 minus 117 is something like 2083. And now if the Reliance fall to 1800, just imagine what will happen to him. Now we have seen the Reliance, what had happened for continuously 10 years. Reliance was trading in the range of 800 to 900 for almost 10 years. And the public who had invested in Reliance, they were so fed up, like what we are fed up today in ITC. ITC is not moving beyond 10 rupees. The same thing was happening in the Reliance at that time, around 4 or 5 years back. Now, if the same thing happened, then what will happen to him? So that was the one trade. And the second trade, again, one of our member, he took in the Reliance Enterprise, Adani Enterprises. He sold 1500 put in rupees 50. Now, the one day the share was fallen by 25%. Just imagine if the next day also the share would have fallen by another 25%. That means to 1000 rupees, his potential loss will be 4.5 lakh rupees. Now, he says, I have the money to take the delivery. Okay, you have the money to take the delivery, but you are taking delivery at 1450 and share is trading at 100,000 rupees. You will not able to sleep. So this is the one of the major reason why I have taken this slide today. Why I am going to discuss how this maximum danger is in maximum pleasure. Because everybody in our group is selling the puts only. Everybody, all 257 members and those who are active, they are selling the puts only. Okay. So I thought let us discuss what are the problems in that. Now, at the same time, there is absolutely no doubt that covered put is the best strategy among all the option strategy. But no option strategy can beat the covered put. Because covered put mein the major advantage what you are getting is your investment is very less compared to the equity or compared to the covered call strategy or any other strategy. So absolutely there is no doubt that the covered put is the best strategy. You will make tons of money. You will make tons of money in 11 months in a year. Suppose every month you are selling the covered put. No doubt that you will make the money every month. 11 months you are going to make in a year. No doubt. But 1 month of Black Swan event will take away your 11 months of pleasure. And one Black Swan event will definitely come in a year. Definitely once in a year, those issues come. So while there is a secured cash is the best protection, which most likely will take care of any Black Swan event. There's no doubt about it. When you have secured cash, you are willing to take the delivery. So this you are able to take care of the Black Swan events. But if this Black Swan events continue for a long time, like Corona, what has happened in February 2020, the Corona impact was almost for a 4 month. So the February 20, the share were fallen by 10%. Then March
another 10%, April was another 10%. So almost the Sensex has reached to almost around to 7,500. There's a Nifty reached to 7,500 to 8,000 from a 12,000. That means from 12,000 to 8,000, the share market was fallen by more than around 30 to 40%. Now imagine ki if you are buying Reliance Industry today, and if the same this your the delta plus variant become a big problem, and the market fall by another 30 to 40%, what will happen? Same thing the 2008 when the bear phase started, the bear phase continued almost for a full year, 1 year. So at that time, it becomes a very, very difficult for the put sellers, whether you have a covered position or you don't have a covered position. We all are making money today mainly because the market is in the bullish phase or in the sideways movement. So always in the sideways movement or in the bullish phase, the covered put will make the money, and there is no problem. Even if you take the delivery, you will be able to take care of it. But if something happened to the market in a big way, like Corona, February 2020 or 2008 phase, or maybe some big scam come like your the Harshad Mehta type of scam come, I don't know. Nobody knows. Suppose the Adani would have become a big scam. Fortunately, the Adani episode, they have handled it very, very in a very, I will say, good manner, or maybe by government or whatever they have done it. They have handled this Adani Enterprises issue. Suppose that they could not have been handled it. Then the Adani share would have fallen to same 200 rupees. 4 months back, Adani Enterprises were trading in 200 range, and 200 share has become 1,500. No, that is the separate issue. The issue is that I have taken the delivery at 1450. What I will do? And suppose I have sold five put of Adani Enterprises, and if I lose 5 lakh rupees per lot, 25 rupees gone, I will be totally out from the market. So that was the thing. Now, if this is the scenario, now you will ask then what should we do? That question will come everybody. If I am trying to scare you, if I am trying to create a fear, there has to come solution. So I thought, okay, let us have a discussion on that strategy. So the only solution for such problem is the bull put spread. Now, what is bull put spread? With the CSP, that means with the covered, with the cash equivalent put, you will buy FAR or TM put as a protection. Suppose say for example, same RIL. Now, if the Reliance 2200 put you have sold at 117 rupees, he should have bought, or you should buy 2000 rupees put, maybe in the range of 40 or 45 or maybe 30 rupees, whatever the rate was there. If would have bought that 2200, the put what I sold in 32 rupees, he should have bought the same put in 32 rupees. That means his maximum loss will be limited to only 117 minus 32. That's all. The loss will not go to unlimited loss. The what I'm showing, the 14.2 lakh, at least that loss will never come. Maximum 117 minus 32. Okay. So the only solution for this type of problem is you have to buy the FAR or TM put as protection. Okay. Now there are 3 great benefits in the bull put spread. 3 great benefits. Now that you have to tell me. So I'm requesting everybody, what could be those 3 great benefits when you are going for a bull put spread? That is when you are buying the protection along with your CSP, that is the covered put. What could be those 3 benefits I want to discuss? Just share me. These are the 3 great benefits. सर पहला तो यही है कि शांति की नींद सोएंगे. Okay, so that means one is the protection. That means insurance call की बोलिए, ये health बोलिए. It will help us in terms of Okay, तो एक benefit तो हमारे को ये हो गया. Requirement भी कम होगा. एक benefit तो ये हो गया कि नंबर 1 benefit हो गया कि मेरा जो है मेरे को protection मिलेगा. ठीक है, नंबर 1. अभी आप 2 और बताइए मेरे को. सर दूसरा margin requirement कम होगा. Excellent. Very good. Your margin requirement will be reduced. Unimaginable. आप सोच नहीं सकते कितना आपका margin requirement कम हो जाएगा. आप थोड़ा जाके चेक करना. You just go and check in the Zerodha calculator. What you do कि when you are selling your covered put, or you are even selling say 2000 का आपने जो 2200 का जो आपने Reliance Industries का जो put बेचा है, उसके साथ में आप 2000 का उसमें एक लेग और ऐड करो,
और 2000 का पुट का जब आप उसको ऐड करोगे, देन यू सी कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है. It will be almost reduced by more than 50%. So that is the second benefit. Okay, the margin requirement is the great facility. Now you have to tell me the third benefit. सर तीसरा ROI बढ़ जाएगा आपका. नहीं, ROI तो कम हो जाएगा. ROI will अगर be एज पर मार्जिन मनी देखेंगे सर तो ROI बढ़ जाएगा. हाँ, वो हिसाब से ठीक है, बट अदरवाइज अगर एब्सोल्यूट रिटर्न में जाएंगे तो मार्जिन कम हो जाएगा. अदरवाइज आप देखेंगे कि मेरा कितना मार्जिन लगा है तो ठीक है, दैट आई एग्री विद यू, बट that is not a great benefit. और तीसरा बताइए. Instead of taking possession at 2200, you can take possession at 2000. मैं इसको फिर से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी यदि वो 2200 का ही पुट रखते हैं और पोसेशन देना पड़ता है उनको, वो he is saying he is happy at taking 2200. But हाँ, वो हैप्पी इसका छोड़ दीजिए. अभी ये सिचुएशन डिस्कस करें. Sir, we are not, if he had taken forced to take 2000, delivery. he would have taken delivery at 2000. That is 200 rupees lesser than what he would have initially thought. नहीं, आप तो बाय कर रहे हैं ना. हाँ, तो बाई ही कर रहे हैं ना. दूसरा पुट तो आप बाय कर रहे हैं. सर इस केस में हमारा सर वी आर नॉट फोर्स्ड टू टेक डिलीवरी. मतलब अगर फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, देन वी कैन अवॉइड दैट शेयर टू टेक डिलीवरी एंड बुक दैट लॉस एंड वी कैन रिकवर इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स. यू आर ऑलमोस्ट टू द पॉइंट, बट आप एग्जैक्टली मुझे बता नहीं पा रहे. यू आर ऑलमोस्ट टू द पॉइंट. इसमें थोड़ा और सोचिए. सर दोनों का स्ट्राइक प्राइस तो अलग अलग है. इसमें प्रीमियम कम होगा ना, प्रीमियम अर्निंग कम होगा. नहीं, वो तो ठीक है. वो प्रीमियम आपका ऑब्वियसली आपने वो 30 जो 117 रुपए का तो पहले बेचा था और 32 रुपए का आपने ले लिया, तो आपका प्रीमियम तो कम हो गया, लेकिन आपका इतना सेफ्टी पड़ गया ना, तो आपका प्रोटेक्शन. हाँ, वो सब बराबर है. मैं उसका नहीं बात कर रहा हूँ. देयर इज वन ग्रेट बेनिफिट अवेलेबल हियर. यू आर कैपिंग अप योर लॉसेस. Capping your losses और प्रोटेक्शन में आ गया. When you are protecting your covered put, so that is the same thing. You are capping your profit, you are capping your loss, everything. But there is a one more great benefit available. Like in case of Adani sir, अभी उसका fundamentals is not good. Earlier we are thinking that Adani is a good share to take in portfolio, but now its fundamental is changed. So we can at that time, in this case we can book the losses and we can avoid to take delivery. नहीं, but you are not still not reaching to the main point जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. Basically, you will get to buy share at a much lower rate. Excellent. That is what I wanted to say. Excellent. That is what these are the three benefits. Okay. So number one benefit is the. That is what I was also saying. आप जो exactly नहीं बता पा रहे थे, मैं बोला था you are almost to that point, but you are not able to say the exactly pinpoint नहीं बता रहा. मैं भी बता देता हूँ. Number one is the you are able to protect your unlimited loss. अगर वो रिलायंस का शेयर अगर 1500 भी हो जाएगा तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो आपने जो ओटीएम पुट को जो प्रोटेक्शन में जो लिया हुआ है, दैट विल यू सेव यू. वो जितना शेयर गिरेगा वो वहां से पैसा आ जाएगा. सो दैट्स वेरी क्लियर. उसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं है. इट विल प्रोटेक्ट योर अनलिमिटेड लॉस. नंबर 2, इट विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू बाई एट द लोएस्ट प्राइस व्हाट एवर यू डिजायर. कहने का मतलब ये है कि अगर वो शेयर 1800 आ गया, 1500 आ गया, 1000 आ गया, आपको जो मर्जी है उस रेट पे जाके ले लेना. आपको जबरदस्ती नहीं है. अभी आपको बाई फोर्स उस शेयर को 2200 माइनस 117 में लेना पड़ रहा है. ठीक है ना, मतलब कि आपको 2083 में लेना पड़ रहा है. बट अगर आपने वो नीचे का प्रोटेक्शन ले लिया और नीचे का प्रोटेक्शन लेने के बाद में भी वो शेयर 1500 रुपए आ जाता है मान लीजिए, तो नंबर 1 तो आपको उसने बचा दिया 2200 से लेके 1500 तक. एट द सेम टाइम यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बाई एट द 1500 इफ यू वांट. अदरवाइज नहीं तो क्या होता था कि आपको बाई फोर्स लेना पड़ता था 2083 में, और जब 1500 आ जाता तो आप कुछ नहीं करते थे. आप बोलेंगे अपना पैसा ही खत्म हो गया मेरे पास, और you have to arrange the money. So this is the second great benefit. You can buy the share as per your desire, and if you don't want to buy the share, don't buy the share. There is no force to you. CSP में तो आपको डिलीवरी लेना ही पड़ेगा. यहाँ पे आप डिलीवरी नहीं भी लेंगे तो चलेगा. ठीक है ना. तो ये सर then here but that premium you will have to pay out then ना additional. कौन सा प्रीमियम बाई करने के लिए? अरे भाई आप तो शेयर खरीद रहे हैं ना. अरे वो शेयर प्राइस अभी वो नहीं आया, 1500 नहीं आया तो. अरे अगर आपको 1500 नहीं आया वो बात अलग है. सपोज अगर वो शेयर आपका 1700 आ गया, अभी आपको ये लग रहा है यार 1700 तो बॉटम इसका हो गया है, तो नाउ यू हैव अ चॉइस टू गो एंड बाय द शेयर एट 1700. मतलब आप अपनी मर्जी से शेयर खरीद रहे हैं. आपको बाई फोर्स नहीं खरीदना पड़ रहा है, जबकि कवर्ड पुट के अंदर बाई फोर्स शेयर खरीदना पड़ता है. अगर वो शेयर आपका ब्रेक इवन से नीचे आ गया, जैसे कि अभी इन्होंने रिलायंस का जो 2200 का जो पुट बेचा है, 2200 माइनस 117 करके 2083 आ गया,
तो 2083 के नीचे आते ही वो इनको 2083 में डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर वो डिलीवरी नहीं लेंगे तो उनको लॉस चालू हो जाएगा। तो आपको भाई फोर्स करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो आपकी डिजायर है, इफ यू वांट टू बाय यू बाय, यू डोंट वांट टू बाय डोंट बाय, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड ग्रेट बेनिफिट। सर डिजायर कैसे है सर, ये डिजायर कैसे है समझ नहीं आया, क्योंकि हमने बाय कर रखा है। नहीं, क्योंकि आपने पुट बेचा था और पुट बेचने के साथ में आपने ओटीएम का पुट जो खरीद लिया है, तो दोनों पोजीशन आपका हेज हो गया है, ठीक है ना, दोनों पोजीशन हेज हो गया है। तो अभी आपके पास ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो शेयर खरीदना ही पड़ेगा। ओके, अभी अगर वो शेयर अगर गिर जाता है, अभी वो शेयर अगर मान लो 1500 आ जाता है, 1700 आ जाता है, तो यू कैन गो एंड बाय द सेम रिलायंस शेयर एट द 1700। ओके, वो आपको फ्रीडम मिल गई। अभी जैसे आप आईडीएफसी बैंक में कर रहे हो, अब आपका एक मिनट, फिर से सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, सबको एक बार म्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ चलो, सबका वैसे आवाज खत्म हो गया। ओके, तो इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि यू कैन बाय द शेयर एज पर योर डिजायर। आपको डिलीवरी लेना है कम रेट में तो आप डिलीवरी लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो दैट इज द सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट। और थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, द ग्रेट रिडक्शन इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर द न्यू मार्जिनिंग सिस्टम। ये जून 2020 से चालू किया था, अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। आप एक बार ज़ीरोधा में जाके कैलकुलेट करके देखना कि व्हेन यू आर टेकिंग द टू ट्रेड, कवर्ड कॉल में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कवर्ड पुट में बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें आपने पोजीशन हेज किया है विद इक्विटी और विद कैश, तो उसमें अपने को बेनिफिट नहीं मिलता है। बट व्हेन यू आर टेकिंग द सेम शेयर के आप 2 ट्रेड ले रहे हो, एक बाई का और एक सेल का, तो उसमें आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट एकदम से कम हो जाता है। तो दिस इज द थर्ड बेनिफिट फॉर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। आई होप विद दिस स्ट्रेटेजी नाउ एटलीस्ट जो मेरा जो ऊपर वाला जो मैसेज था, स्टैट्यूटरी वार्निंग, एक्सट्रीम डेंजर, एक्सट्रीम पेन है, दैट यू कैन टेक केयर। नाउ अभी मैं आता हूँ, इसमें एक बेनिफिट और हो सकता है ना सर, इसमें एक बेनिफिट ये हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने सिक्योर कर दिया, अपने आप को हेज कर दिया है, तो एक तो हमारा मार्जिन ज्यादा रिलीज हो गया। तो मार्जिन ज्यादा होने से हम अगर अब आज की डेट में 2 ही पुट लेने की कंडीशन में थे, तो अब मैं 4 पुट विद हेजिंग ले सकती हूँ। तो मेरे पास ये भी तो एक बेनिफिट हो गया ना सर, क्योंकि मार्जिन भी एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास। अरे बट लेकिन उसमें डेंजर ज्यादा बढ़ गया ना, आपने 4 पुट बेच दी है और वो शेयर मान लो अगर आपका जो 25% गिर गया तो सर हेजिंग भी तो है मेरे पास। कहाँ हेजिंग का? आपने 4 पुट बेच दिया आपने तो। नहीं तो मैंने साथ में 4 बाय भी तो करी है। हाँ, तो बात खत्म हो गया, फिर तो आप जितना मर्जी कीजिए ना आप। इसीलिए कह रही हूँ ना कि आज तो हम डरते हैं कि इतनी पुट नहीं करें, लेकिन अगर हम हेजिंग के साथ चलते हैं तो हम ज्यादा पुट कर सकते हैं। हाँ, उसमें लेकिन इश्यू क्या है ना कि अपना प्रॉफिट कम हो जाता है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। हाँ, जो आपका जो ओटीएम जो पुट बाई कर रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को जो आप अपने से निकालोगे तो वो कम हो जाता है। तो एटलीस्ट यू कैन टेक अ कॉल। जो ये निफ्टी में जो लोग काम करते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो सारे के सारे लोग ये वाला स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो वहां पे तो उनको कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाउ दे विल बाय निफ्टी तो मिलता नहीं है। तो वो लोग सारे के सारे लोग जो है वो बुल पुट या आपका बियर कॉल स्प्रेड करते हैं। अगर उनको ऊपर के साइड में पोजीशन लेना है कवर्ड कॉल वाले में, तो दे विल डू द बियर कॉल स्प्रेड, और अगर उनको नीचे वाले में पोजीशन लेना है तो दे विल डू द बुल पुट स्प्रेड। इन दोनों में पहले क्रेडिट आता है, तो वो क्रेडिट आपके पास रह जाता है। तो इनमें ये स्ट्रेटेजी है। ओके, नरेश जी आप जो बता रहे हैं, आई थिंक बहुत बड़ी अच्छी आपने चीज बताई है कि उसमें जो थ्रेट है, थ्रेट ऑफ लाइकली प्राइस ड्रॉपिंग, थ्रेट वी आर कन्वर्टिंग इनटू एन अपॉर्चुनिटी और परचेजिंग शेयर एट द लोअर प्राइस। यू आर राइट। वही तो 3 ग्रेट बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो 3 ग्रेट बेनिफिट अगर आपको समझ में आ गए, आप कभी भी सीएसपी नहीं करेंगे, आप कभी भी पुट नहीं बेचेंगे। सर एक बार एक एग्जांपल से हमें कम रेट पे शेयर खरीदने को मिलेगा, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे? अरे वो तो सीधा सीधा है ना। अब सेम रिलायंस का जो 2200 का शेयर है, आप इमेजिन कीजिए कि रिलायंस का शेयर 2200 का वास्तव में 1800 आ गया। ओके, वास्तव में 1800 आ गया, तो इसमें जो इन्होंने जो अपने जेडी ने जो पोजीशन लिया था, उसको लॉस हो रहा है 14.2 लाख का। ओके, ठीक है, और उसको शेयर कितने में लेना पड़ रहा है उसको, अगर ये लॉस बचाना है तो उसको लेना पड़ रहा है 2200 माइनस 117 यानी कि 2083 का। ओके, और शेयर हो गया 1800। ओके, अगर ये उसने मान लो उसने 1800 का पुट अगर खरीदा हुआ होता या 2000 का पुट खरीदा हुआ होता, तो वो जब शेयर 1800 होता, 1800 में वो नया शेयर खरीद लेता। ओके, 1800 में वैसे जाके शेयर खरीद लेता ना। वो देखते हैं रिलायंस 1800 तो पिछले 1 साल में गया ही नहीं है, तो he would have easily bought in 1800. But since he has sold the put, he cannot go for that 1800, or he has to put in more invest. So that is the advantage. That is the great benefit of this
कवर्ड जो मैंने बताया ना, ये जो स्ट्रेटेजी बताया है बुल पुट स्प्रेड का, Sir, I have तीन two बेनिफिट। doubts. या First is that how do we select the FAR OTF? Like, is there भाई any वो तो difference? भाई उसमें यही फंडा है, उसका यही फंडा है, जितना आप दूर जाते जाओगे उतना आपका वो एक तो प्रीमियम कम होता जाएगा, लेकिन उतना आपका ब्रेक इवन बढ़ता जाएगा। So, is there any मतलब कोई tried and tested है कि we should go ट्राइड एंड टेस्टेड क्या है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन टेक 2 स्टेप अवे। अब जैसे इन्होंने 2200 का बेचा था, मान लीजिए, आई वुड हैव टेकन 2000 का मैं ले लेता था। हाँ, मैं 2000 का लेके मैं अपना प्रोटेक्शन कर लेता। 117 मैंने दिया है और 32 रुपए का मेरे को उसी समय पुट चल रहा था, मैं 32 रुपए का जो है आपका 2000 का पुट ले लेता हूँ। Got the point, sir. And तो यानी कि 200, हाँ तो 10%, 8%, 10% पे ले लो, दैट इज फेयर एनफ, फेयर एनफ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे, अभी जो मेरा स्ट्रेटेजी है, जो मेरा स्ट्रेटेजी मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं किस तरह से करना चाहूंगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी जैसे इसमें एक और चीज था सर, जैसे पुट का प्राइस जैसे गिर रहा है तो ठीक है, वो बेनिफिट देगा, पर लेट्स से कि 2000 तक गिरता है तो हमें पुट का प्राइस में फायदा होता है, एंड फॉर 10 डेज मार्केट इज साइडवेज, तो हमारा लॉस तो वहां पे भी वो इंटैक्ट रहा जो हमने सेलिंग किया था, और पुट का जो प्रीमियम था वो भी डिके हो गया होगा, वहां पे लॉस शुरू हो गया होगा। वो बराबर है, जब आपका साइडवे मूवमेंट होगा तब आपको कवर्ड पुट सदा बेनिफिट देगा। प्रॉब्लम हो रहा है ये जो साल में जो एक बार जो ब्लैक स्वान इवेंट आता है ना, एकदम से कुछ आपका चाइना का थ्रेट आ गया, पाकिस्तान का थ्रेट आ गया, या कुछ किसी पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम हो गया और एकदम से मार्केट गिर गया, मुकेश अंबानी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय जो एक बिग फॉल आ जाएगा उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, वो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। बट अब ये स्ट्रेटेजी तो आपको हर महीने लगानी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो ये हमको पता नहीं कब आने वाला है वो। हाँ, yes, वो sir, अगले yes, महीने sir. भी आ सकता है, उसके अगले महीने भी आ सकता है, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है ना आए, वो भगवान जानता है इसको। नहीं तो एज अ रूल आई थिंक व्हेन वी से दैट मैंने ये पुट बेचा है, इमीडिएटली वी शुड से कि ये मैंने पुट खरीदा भी है, पुट खरीदा भी है, तो आपको फिर तो डरने की बात ही नहीं है आपको। अगर आप ये करके चले आपको डरने का कोई बात ही नहीं। अभी मैं इसका भी थोड़ा सा बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बेटर और बता रहा हूँ मैं आपको, वो थोड़ा दिखेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि सपोज मेरा एचडीएफसी में मास्टरी है, तो मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आईडीएफसी का रेट चल रहा है 58, ठीक है। अभी आपको अब अगस्त का जो 60 का पुट है, 60 का पुट है, वो आपको 6 रुपए में बिकेगा 2-4 दिन के अंदर, आराम से बिकेगा। अभी तो इसमें लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि जुलाई का अपना जून वाला जस्ट खत्म हुआ है, तो जैसे ही आपका थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद में अगस्त के रेट ट्रेड होने जाएंगे। तो जो मैंने जुलाई में किया था वो मैं अगस्त में भी मैं 60 रुपए वाला पुट में 6 रुपए में बेचूंगा, तो वो मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है, 10% का रिटर्न आ रहा है। मतलब 6 रुपए का 60 रुपए पे अगर मैंने बेचा तो मेरा 1.5 महीने का जो रिटर्न है मेरा 10% आ जाता है। सर म्यूट कर दीजिए सबको। एक मिनट, तो अभी जब ये आईडीएफसी आपका 58 पे चल रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि 60 का जो पुट है मैं 6 रुपए में बेच दूं, ठीक है ना। तो मेरे को जो है वो 10% मेरे को रिटर्न मिलने वाला है। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो मैं जो है वो 60 रुपए का जो पुट है वो मैं 6 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे 10% का रिटर्न का मैं उस पर बेटिंग कर रहा हूँ। ओके, तो दिस 10% रिटर्न इज एक्सट्रीमली हाई इन एक्सट्रीमली लिक्विडिटी। यानी कि जहां मैं बैंक में तो मेरा पूरा साल में रखता हूं तो मुझे 4% का रिटर्न आता है, यहाँ मेरे को 1 महीने पे 10% का रिटर्न आ रहा है। सो इट इज एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लुक्रेटिव आल्सो, बट मैक्सिमम डेंजर इन मैक्सिमम प्लेजर, दैट इज द थ्योरी विल वर्क नाउ। अगर 6 रुपए अगर मेरे को मिल रहा है तो कोई जो पुट बायर है वो 6 रुपए में बेच भी रहा है ना, किसी ने तो पुट बाई किया है, तभी तो वो 6 रुपए में उसने बेचा है और मैंने बेचा है, किसी ने खरीदा होगा, तो वो भी इतना बेवकूफ तो नहीं है। उसने जब 6 रुपए का जब प्रीमियम दिया है और मैंने बेचा है, दैट मीन्स कि दोनों का उस पर्टिकुलर मोमेंट पे दोनों का ये मानना है, मैं ये मान रहा हूँ कि शेयर 60 के नीचे रहेगा, और वो ये मान रहा है जो उसने पुट बाई किया है 6 रुपए में, वो ये मान के चल रहा है कि आईडीएफसी का पुट 6 रुपए गिरेगा, तभी वो 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दैट इज द रीजन देयर इज अ मैक्सिमम डेंजर इन मैक्सिमम प्लेजर। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, मैं नाउ आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब दो सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। एक सॉल्यूशन तो जो मैंने ऊपर बताया था कि इमीडिएटली बाय 55 पुट इन ₹3, वो अगस्त का जो है 55 का जो पुट है 3 रुपए में ट्रेड हो रहा होगा,
वो 3 रुपए का मैं अगर पुट प्रोटेक्ट ले लेता हूँ तो आई विल बी एबल टू सेव माई 50% गेन। मतलब 6 रुपए से 3 रुपए मेरा निकल गया तो 3 रुपए मुझे अभी भी मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई 50% ऑफ द गेन। ठीक है। नाउ सिंस अगस्त एक्सपायरी इज ऑलमोस्ट 60 डेज अवे, ये आप सुनिएगा देखिए, सिंस अगस्त एक्सपायरी इज ऑलमोस्ट 60 डेज अवे, there will be number of days when 60 put will trade in rupees 3 to 4 range, giving opportunity to book profit of rupees 2 to 3, that is 33% और 50%। यानी कि आज हम जो नॉर्मली जो हम सारे मेंबर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही पुट बेच रहे हैं, अगस्त का या जुलाई का पुट बेच रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, हर बार मैंने बताया कि आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, वो आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं और आप अपना प्रॉफिट करके बाहर निकल जा रहे हो। अभी जैसे मीनू जी ने बताया था कि मैं वो 3,500 4,000 का प्रॉफिट लेके निकल जा रही हूँ आईडीएफसी में से, मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जा रही हूँ। तो ऐसे आपको बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि आपने 6 रुपए में बेचा हुआ विच वॉज वेरी वेरी हाई, तो आपको 25%, 30%, 50% का प्रॉफिट होगा, आप उसको लेके निकल जाएंगे। अभी आपको यहाँ होल्ड करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, आई वुड रिकमेंड, जब 60 का पुट हैज फॉलन टू ₹4, यानी वो जो 60 वाला जो प्रीमियम जो आपने 6 रुपए में बेचा था, जब वो 4 रुपए में आ गया है, तो जो 55 वाला जो पुट था उसका भी रेट आपका 1.5 या 2 रुपए हो जाएगा। नाउ यू बाय योर प्रोटेक्शन थ्रू 55 पुट ओटीएम। दैट मीन्स कि जब आपने 60 वाला बेचा था उस समय आपने 55 का पुट नहीं खरीदा, आपने वेट किया मार्केट को गिरने का। वो जो आपका प्रीमियम जो 6 रुपए वाला जो प्रीमियम था, वो जब 4 रुपए आ गया तो आपका 55 का भी जो प्रीमियम है वो आपका 1.5 से 2 रुपए आ गया, उस समय आप प्रोटेक्शन ले लो आप। अब वो अगर आपने उसमें प्रोटेक्शन खरीद लिया है 1.5 रुपए में या 2 रुपए में, तो आपका जो 6 रुपया वाला जो 4 रुपए का जो बेनिफिट है वो आपको 100% मिलेगा टिल द एक्सपायरी। जो आप जो ये प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जा रहे हो कि मैं 4,000 में निकल गई, या कोई बोल रहा है मैंने 2 रुपए में प्रॉफिट करके निकल गया, वो अब आपको डरने वाली बात नहीं है। क्यों कि आपको ये जो 1.5 रुपए में जो आपने 55 वाला लिया है ना, वो आपको बचाएगा टिल द एक्सपायरी। नाउ यही प्रिंसिपल आप कवर्ड कॉल में भी यूज करेंगे कि आपने जो है शेयर को लिया, आपने जो है वो कवर्ड कॉल बेचा, अभी आप प्रोटेक्शन चाहो तो मत लो, ले लो तो बहुत अच्छा है। अगर आपने पहला वाला स्टेप का अगर प्रोटेक्शन ले लिया तो आपने उसी समय से प्रोटेक्शन ले लिया। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 8-10 मौके मिलेंगे जबकि मेरा शेयर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब नहीं जाएगा तो मेरा बैड लक है। तो जैसे ही मेरा शेयर ऊपर जाएगा, जैसे ही कवर्ड कॉल की रेट के आसपास आने लगेगा, मैं उसके आगे की जो है मैं कॉल खरीद लूंगा, सेम प्रिंसिपल से। तो कवर्ड कॉल में भी ये प्रिंसिपल काम करेगा, कवर्ड पुट में भी प्रिंसिपल काम करेगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि हो सकता है कि वो मुझे मौका ना मिले, बट जो एक्सपीरियंस जो बोल रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, उसमें ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर आपने अगस्त का बेचा है तो आपको कम से कम 4-5 मौके से मिलेंगे, जबकि आपका वो 60 वाला प्रीमियम 4 रुपए में आ जाएगा। या आपने अगर मान लो बीपीसीएल का बेचा है या रिलायंस का बेचा है, अभी रिलायंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिलायंस का जो 117 वाला जो था, वो 117 वाला ऑलरेडी, क्योंकि वो तो 2200 का बेचा था, लेकिन बाकी वाले देखेंगे उनके ऑलरेडी प्रीमियम नीचे गिर गए इतने, उनके बाकी के जो प्रीमियम जो जैसे मैंने 32 वाला जो बेचा था, 32 वाला जो 2000 का जो, अगर उस समय प्रोटेक्शन लेना होता उनको, तो वो 2000 का पुट खरीदते 32 रुपीज में या 35 रुपीज में। ठीक है। अब वो ऑलरेडी एक दिन में 25 रुपए आ गया, समझ रहे ना। जो 2000 का प्रीमियम 32 रुपए था फ्राइडे को, यानी थर्सडे को, वो फ्राइडे को ऑलरेडी 25 रुपीज आ चुका है शेयर गिरने के बाद में भी। तो दैट वाज द टाइम कि एटलीस्ट अभी तो 25 रुपए में ले लो। तो वो 25 रुपए में लेने से कम उनको ये फायदा होता है कि शेयर गिरता तो वो 25 रुपए को बचा लेता। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो सेम टाइम पे, इफ यू वांट टू डू इट, देन इट्स वेरी गुड। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दैट स्ट्रेटेजी कि आपने उसी समय ओटीएम वाला जो पुट खरीद लिया है। बट अगर आपने उसी समय नहीं भी खरीदा है, तो कम से कम जब आपका शेयर जब आपका वो प्रीमियम गिर गया है, उस समय जब वो नीचे में जब आ गया, तो उस समय आप अपना ओटीएम का पुट खरीद लो। देन आप मंथ एंड तक बैठे रहो शांति से, कुछ नहीं होने वाला है, आपका जो है पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजी आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस। और यही मेरा एक स्लाइड का आज का प्रेजेंटेशन था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क मी, एंड देन अदरवाइज आई विल हैंड ओवर द डायस टू स्टार्ट मिस्टर रुचि जो अपना अगला प्रेजेंटेशन करने का है। एनी इशू ऑन दिस यू कैन आस्क मी। सर जो हम पुट बाय करेंगे, वो पुट भी तो हम अगस्त एक्सपायरी के बाय करेंगे ना, अगर हमने अगस्त का ही बाय करेंगे। वो 1.5 रुपए जाएगा, जाने दो। 6 रुपए में से 1.5 रुपए क्या है ना, 2 रुपया गया तो जाने 4 रुपए तो मिल रहा है ना मेरे को पूरा का पूरा। ओके सर, ओके। 4 रुपए का मुझे पूरा मिल रहा है, और नीचे चला गया तो मेरे को ये जो है पुट मेरे को बचा लेगा।
तो मेरे को 4 रुपए का जो है ना बहुत बड़ा मेरे को जो बेनिफिट है, जो मेरे को डर लगता रहता है, अरे ये कहीं वापस से गिर ना जाए, तो वो मुझे प्रोटेक्शन देगा। दैट इज द स्ट्रेटजी। या सर पुट बाय करना, इमीडिएटली बाय करना अच्छा है, भाई कल क्या होगा मालूम नहीं। वो बात सही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अगर करना है एक्सपीरियंस की बेसिस पे, या जो भी आपने जो जनरल देख रहे हो, बहुत सारे मौके मिल जाते हैं 10-15 दिन के अंदर। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने IDFC के, BPCL के, मैं एक महीने के मैं इनके रोज के डेटा को डाउनलोड करके देख रहा हूँ मैं कि कैसे ये मूवमेंट करते हैं, मतलब इनके जो प्रीमियम्स है ना कैसे मूव करते हैं। इनवेरिएबली मैंने देखा है कि 60 दिन या 55वें दिन का जो प्रीमियम होता है उससे वो सदा गिरता ही गिरता जाता है। जैसे अगर मैंने ये मान लो 6 रुपए में अगर मैंने बेच दिया, अगर मेरे को 60 का बेचने का मौका मिल गया 2-3 दिन के अंदर, वो फिर 60 के ऊपर नहीं जाएगा, वो मतलब 6 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है 6 का 6.5 हो जाए, बट ये नहीं है कि वो 6 का 10 हो जाएगा। और वो 6 से धीरे धीरे करते करते जब जुलाई का एंड आने लगेगा ना, ये जो जुलाई वाला महीना, जब अगस्त का चालू होगा एक्चुअली, तब तक वो 6 रुपए वाला प्रीमियम ऑलरेडी आपका 4 रुपए में आ चुका होगा। आप चाहो तो जून और जुलाई का देख लो। अभी जो जुलाई के जो मैंने जितने भी मैंने जो पोस्ट मैसेज भी डाला था कि मैंने जितने भी जो मेरे ऑप्शंस मैंने जुलाई के बेचे थे, वो जून में ऑलरेडी मेरे को सारे के सारे 50% प्रॉफिट दे रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे लॉस दे रहा हो। एवरी ईच एंड एवरीथिंग गिविंग मी 50% प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि ये आपके प्रीमियम स्टेबलाइज होते हैं अराउंड 30 डेज के आसपास। तो आप अगस्त का बेचो, उसके साथ में वेट करो, और जब वो नीचे गिर जाए तब उसका पुट खरीद लो। आपको उस दिन खरीदना है तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम, वो आपका चॉइस है। बट व्हाई नॉट टू टेक द फुल बेनिफिट। आज तो हम बिल्कुल मतलब एक CSP कर रहे हैं, तो CSP के साथ में ये स्ट्रेटेजी आई थॉट दिस वुड हैव बीन मच बेटर। दैट इज माय सर पुट बाय करने के साथ फिर हम एक्सपायरी से 2 दिन पहले तक वेट आराम से कर सकते हैं ना? वो तो सब कुछ कर सकते हो ना। अभी जब आपको प्रोटेक्शन है, अगर आपने हेलमेट पहन लिया है और डबल हेलमेट पहन लिया है, तो अभी क्या डर है? आप गाड़ी चलाइए 200 की स्पीड पे। आपने तो वो है ना यहाँ पे, अभी डरने वाला बात नहीं है। तो ये बेसिकली आपने प्रोटेक्शन ले लिया। एनी अदर क्वेश्चन? only in SWAN event or any other event also? क्या फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? No, this will be applicable only in the SWAN event. नहीं, ये आपका कवर्ड कॉल पे भी काम करेगा, कवर्ड पुट पे भी काम करेगा। No, when SWAN happens only we have to do this strategy or how? नहीं, every day, नहीं, every month। Who knows कि वो कब आने वाला है, ब्लैक स्वैन कब आने वाला है, किसी को पता थोड़े ना है। ठीक है। मुकेश अंबानी को अगर कुछ मान लो प्रॉब्लम हो गया तो मुझे क्या पता उसको कब आएगा। हो सकता है नया आए तो बहुत अच्छा है, मेरा रिलायंस का शेयर अच्छा ही चलता रहेगा। लेकिन कल को अगर कुछ आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? या चाइना ने कुछ अगर मान लो प्रॉब्लम कर दिया बॉर्डर पे, तो आई डोंट नो वो उसके मूड में क्या आया है। तो आपको हर महीने करना पड़ेगा। और कितना कॉस्ट कितना आ रहा है? हार्डली 20% कॉस्ट आ रहा है। 6 रुपए में से अगर आपने 2 रुपए छोड़ दिया तो ठीक है, 80% तो मिल रहा है ना, लेकिन शांति से मिल रहा है। एडवांटेज ये है कि शांति से मिल रहा है, प्रोटेक्शन है और मार्जिन कम लग रहा है। और आपको चॉइस है, आपको जब मर्जी अगर रेट बहुत नीचे आ जाए आप अपना शेयर खरीद लेना।